Hello everyone, welcome to Psychic Healing by Swabi. I am Swatika Shrivastava, your psychic healer, and I do tarot reading, Akashic reading, and automatic writing. You can get in touch with me by following my Instagram page or my Facebook page, which is updated in the description section. At the same time, for any one-on-one session, you can message me on my Instagram, or maybe you can get in touch with me via my website, which is www.psychichealingbyswabi.com. I'm here to connect with you, to give you the guidance, to share the guidance that universe has shown me already basis your Moolank, basis your birth number for the month of October 2025. But before getting into the readings and guidance, let me tell you that basis your birth number, in the description box, you will see the timestamps updated already. So rather than going through the entire video, you can strictly click on or go to that specific timestamp and understand your readings, understand your guidance. So let's see what universe is showing for Moolank 1 here. Moolank 1 meaning people who are born on 1st, 10th, 19th or 28th of any month. So basically this month, October 2025, is all about assurance of universe, new beginning and harmony. So ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज की whatever you're waiting for, like the new beginning, you're emerging victorious, you're going to be stronger, you're beginning this month positively with everything under control. Universe tells you to just focus on your caliber and give your 100% in everything, whatever comes your way, and you're going to do the same. आप सही सेम करने वाले हैं. जो भी डिसीजंस आप लेंगे इस महीने, वेदर इट्स डिसीजन मेकिंग के बारे में है, फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में है, या रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट के बारे में है, या इट इज अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, इट लुक्स लाइक दैट everything is going on a positive track. So just keep yourself positive and motivated and believe that you can do and manage things effectively, because इस तरीके की एनर्जी आ सकती है जहां आप खुद को डाउट करें. आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअल होंगे इस महीने, या आपके आसपास कोई फीमेल है जो बहुत ही स्ट्रांगली इंक्लाइंड है स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंड हैज़ ग्रेट साइकिक एबिलिटी ऑल्सो. मतलब उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है and it can actually help you to come through a lot of things in life generally. So you can connect with someone like this. अगर कोई नया पर्सन है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं इस महीने. एंड यू आर गोइंग टू कीप योर पीस एंड काम इंटैक्ट दिस मंथ. यू आर गोइंग टू मेक डिसीजंस well, and such decisions are certainly required, to keep your mind in place. And also meditation is the key this month. Keep yourself calm and composed here. Some harmony and balance certainly coming back into your life is mahine. At the same time also you're going to begin something this month for sure, या फिर आप ऑलरेडी उस नई चीज़ पर काम कर रहे हैं. हो सकता है कोई नई जॉब हो, कोई नई फील्ड है जिसे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, पढ़ाई है या कोई प्रोफाइल है या कोई बिजनेस आइडिया है, कुछ ऐसा है जो जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं, बट वो आपको ना थोड़ा टफ लग रहा है इस टाइम पर. बट अगर यूनिवर्स के एनर्जी के हिसाब से अगर आप इस पाथ पर कंटिन्यूसली विद डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, सिंसियरिटी चलेंगे, तो इन द कमिंग टाइम, इन द लॉन्गर रन, इट इज गोइंग टू बी अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ अ सिचुएशन, लाइक ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ अ लाइफ दैट यू गोना क्रिएट फॉर योरसेल्फ. आप अपने गोल्स मीट करेंगे. अभी ऐसा लग रहा है कि some sort of a struggle is part of it, right? You need to keep all your senses in check, intact here as well. So Moolank number 2, let's get into Moolank number 2 for the month of October 2025, meaning people who are born on 2nd, 11th or 20th or 29th of any month. Their birth number is number 2. So for them universe ने इस महीने दिखाया है इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर सेल्फ डाउट वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर, और दैट समवेयर just done with few things in life. They have this feeling कि उनकी लाइफ में ना कुछ सर्टन एक्सपीरियंसेस हैं जो काफ़ी रिपीटेटिवली तरीके से आए हैं, हर बार आए हैं, और they're just done with it. एंड दे फील कि आपको लगता है कि आप टायर्ड हैं, आप कहीं मूव नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो मोटिवेशन नहीं है कि आप उस जगह से खड़े होकर उस सिचुएशन से आगे बढ़ें.
बट कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं कई लोगों में, बट आपके डिमोटिवेशन और ट्रस्ट इश्यूज के बावजूद भी यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप अपना चेहरा उस तरफ कीजिए जहाँ पर आपकी लाइफ में एक सूर्य उदय हो रहा है, मीनिंग कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कोई नई न्यू बिगिनिंग आ रही है, आप इस पर्टिकुलर फेज के एंड में पहुंच गए हैं, और वट एवर थिंग्स हैव हैपेंड विद यू आर एक्चुअली मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर एंड बिगर इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस। यूनिवर्स आपको बोल रहा है जस्ट कीप योर हेड हाई, look at the sun rising for you. Whatever experiences came, they all came to sharpen you and make you what you are. Just thank, all those experiences and move on. Get up. See, there is a new beginning waiting for you, and it is also the end of the struggle of something. You're reaching the end of it. जैसा कि मैंने आपको बताया. Be ready. Number 2, to receive some amazing news and information this month, and it will certainly help you grow and become stronger for sure, and it will help you intact the experiences of life. Hold on to your reality and who you are. You don't have to change for anyone for that matter. Who you are, it's best for you and for the people around you. Just accept this gift from God, or the kind of reality check or information, the news that you're receiving. बेसिकली हो सकता है कि इस न्यूज़ और इस इन्फॉर्मेशन से ना आपको लगे कि अरे मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट समथिंग लाइक दिस हैज कम अप इन फ्रंट ऑफ मी. इट्स गुड दैट यू आर एक्सपोज टू समथिंग लाइक दिस. आप उस चीज़ का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि वो यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए, ताकि आप कुछ डिसीजंस अपनी लाइफ में लॉजिकली ले पाएँ. ठीक है. अब आप लोगों में से कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू. कुड बी कोई नया काम हो सकता है, कोई नया प्रोफाइल हो सकता है, कोई नया बिजनेस आइडिया हो सकता है, या कुछ ऐसी नई चीज़ है जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और समथिंग दैट यू जस्ट गॉट होल्ड ऑफ. जैसे आपको रियलिटी चेक मिला जिसकी मैंने आपकी बात करी है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया. हो सकता है उसके बाद आप you're doing something new, but यहाँ पर ना आप थोड़े से worried लग रहे हो, and you're just holding on to that something very tightly, and you're not letting go of that thing, that feeling, whatever that could be. A fear also, it's something that is adding worry in your life, something you're very adamant about and you really don't want to let go of the same. But universe कहीं ना कहीं आपको ना ये indication भी दे रहा है कि practical होना life में is very important, right? Why? Because it is going to help you grow. A lot of experiences comes that actually generally don't go with what you are expecting, right? So it is important, if it is not helping you grow or reach anywhere, just accept the reality. Do not crib, do not cry about it. You have an amazing life situation right in front of you, and you're actually working towards greater experiences of life. Just don't be adamant about anything. Be flexible in life, and you will see the experience that is going to enhance for you for sure. Mulank number 3, birth number 3. For you, the universe has sent guidance for October 2025, meaning people who were born on 3rd, 12th, 21st, 30th of any month. This message is for you. So this month begins very strongly for you. ऐसा लग रहा है कि या तो आपको 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं, 2 न्यूज़, 2 कुड बी, अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो 2 रोल्स भी हो सकते हैं, 2 ऑफर्स भी हो सकते हैं, 2 इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन का टाइम हो सकता है, काम से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है जहाँ पर यू रियली नीड टू अलाइन योर हेड एंड हार्ट टुगेदर टू एंश्योर कि द फ्लो ऑफ बैलेंस एंड सिंक्रोनिसिटी इन लाइफ इज इंटैक्ट फॉर यू. आपके लिए ये गुड न्यूज़ का टाइम तो फॉर श्योर है. 2 ब्यूटीफुल अमेजिंग रोल्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जहाँ आप शाइन करेंगे, अमेजिंग काम करेंगे. हार्ड वर्क जो है ना आपकी लाइफ में आपने कर लिया है, अब इस पॉइंट इन टाइम में आपका वक्त है रीप करने का, टू रीप द आउटकम, टू रिसीव द रिजल्ट ऑफ वट एवर हार्ड वर्क यू हैव डन. समवेयर द पीरियड ऑफ अचीवमेंट इज राइट हियर फॉर यू. It could also be possible कि some of you might struggle in juggling in between the 2 roles at the same time. As I mentioned कि 2 opportunities यहाँ पर हो सकती हैं, काम से related हो सकता है, आपको कुछ ऐसा offer मिले तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी confusion हो which role to prioritize. Now, in such situations, just remember that both the opportunities are equally good.
okay, and both the opportunities are gonna take you to amazing heights or abundance in your life. अब अगर आपको confusion है और आप decision making करना चाहते हैं तो what is the solution here? Meditation. You just sit peacefully, calmly, find out a place. जब भी इस तरीके की situation आती है जहाँ confusion होता है और आपको लगता है आपको decision making करनी है, so you just sit down, breathe in, breathe out, and ask this question simply: Universe, I have two roles. I'm offering it to you. Tell me which one is good for me. आपको अपने आप ही पता चल जाएगा while in meditation कि कौन सा रोल आपके लिए ब्यूटीफुल है और किस रोल में, किस रास्ते में आपको आगे जाना है. ठीक है. तीसरी चीज, आप किसी सेलिब्रेशन का पार्ट होने वाले हैं या कुछ तो सेलिब्रेशन है, कुछ तो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं इस महीने. कुड बी कि यू विल बी हिटिंग सम माइलस्टोन दिस मंथ वेयर एवरीवन इज गोइंग टू कंग्रेचुलेट यू. पर्सनल लाइफ भी हो सकता है जहाँ पर सेलिब्रेशन है, आप उसका पार्ट होने जा रहे हैं अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ. और हो सकता है कि यू आर गोइंग टू इनकाउंटर समवन फ्रॉम द पास्ट, कोई ऐसा इंसान जो आपके पास से कनेक्टेड है, आपके दिल के बहुत करीब है, आपने बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज उस इंसान के साथ सेलिब्रेट की हैं, मनाई हैं. तो इट कुड बी ऑल्सो कि कोई इंसान पास्ट में से आकर आपको एक्सप्रेस कर सकता है, कुछ बता सकता है, अपने मन की बातें आपसे शेयर कर सकता है. एंड समवन फ्रॉम क्वाइट सम टाइम और मे बी आफ्टर द सेलिब्रेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, you will be receiving an offer that is going to get you a lot of hope, stability, strength, financial abundance. Lastly, some of you are already going through some sort of a struggle, right? Where आप tired लग रहे हैं and you look, you will certainly be getting, you don't feel like going ahead and doing something, but universe here is reminding you that universe is there. You need to just surrender your tiredness and whatever your feelings to universe, and universe is going to get you reason certainly to keep your peace and calm intact and move towards the end of this particular struggle in the face of learning in your life. So Moolank 4, as in birth number 4, guidance for people who were born on 4th, 13th and 22nd of any month. For them, universe has shown me for the month of October 2025, number 9 काफी prominent है आप लोगों की readings में इस महीने. Meaning कि आपका जो brain है ना, वो काफी non-stop काम करेगा इस महीने. You will be busy thinking, analyzing too much. Past energy भी जो है ना आपकी, with which you are stepping into this month, it looks like that you're thinking too much, reading too much in between the lines. There is something that is bothering you. You're not discussing or could be expressing, but thinking about the same thing again and again is not going to help. हो सकता है आप लोगों में से कई लोग आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं और वो नेगेटिविटी को बस अब्जॉर्व किए जा रहे हैं, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, which can also hamper your health, mental health. For some of you, it's also an indication कि कहीं ना कहीं कि आपका जो महीना है ना वो बहुत धीरे धीरे शुरू होगा, एनर्जी थोड़ी लो रहेगी विद रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ एंड वेलबींग. तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग. हाउएवर, जैसे जैसे ये मंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इट शोज दैट यू आर गोइंग टू गेट सम गुड न्यूज़, लाइक न्यू बिगिनिंग, एज आई सेड, समथिंग कमिंग ट्रू एज पर योर मैनिफेस्टेशन. अब अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम करने का, बिजनेस में काम करने का, नए जॉब का, कुछ भी ऐसा जो आप पिछले कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप भी हो सकता है, राइट? इट्स टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ द सेम सक्सेसफुली. एंड रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन की भी इंडिकेशन है. सम सॉर्ट ऑफ अ जर्नी कुड ऑल्सो बी देयर वेयर टू ड्राइव योर वर्क, मतलब आपके काम से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है. आपका लक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग फेवर में है. वेरी पॉजिटिव एनर्जी कमिंग इन फॉर यू. जस्ट कीप योर हेड एंड हार्ट अलाइंड एज वेल, मतलब एनर्जी आपको अलाइन में रखनी है, सिंक में रखनी है. यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग स्पेशल दिस मंथ. प्रोजेक्ट, जैसा मैंने बोला, वर्क, डील और एनीथिंग प्रोफेशनली फास्ट पेस में एकदम बढ़ेंगे, नॉन स्टॉप काम करेंगे, 24/7 फुल एक्शन मोड में रहेंगे. जब भी इस तरीके की एनर्जी आती है, आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, just listen to your body, take a pause, breathe in, prioritize your health as well over anything else, because universe यही suggest कर रहे हैं यहाँ पे
ऑल्सो जैसा मैंने बोला, कुछ इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आपके सामने आने वाली है विच विल हेल्प यू वर्क फास्टर। आपको उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, वर्क के पर्सपेक्टिव से उस डायरेक्शन में डिसीजन लेने में मूव करेगी, हेल्प करेगी। नाउ वेन एवर दिस काइंड ऑफ एनर्जी कम्स, इट्स, जैसा मैंने बोला, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक पॉज इन इक्वल इंटरवल्स। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपने गोल्स को भी आप सही तरीके से चेज कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि फोकस्ड रहने के साथ साथ ना आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखें और डिसीजंस लें। एट द सेम टाइम अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। So Moolang 5, as in birth number 5, people who are born on 5th, 14th, 23rd of any month, उनके लिए अक्टूबर 2025 में जो एनर्जी यूनिवर्स ने दिखाई है, according to that energy, this month is going to be about you multitasking, management of things, and juggling in between the work, juggling in between multiple roles here, and and also you could be someone, you could become someone, or you already are someone who likes to control everything and do everything whatever comes your way, which can also create some sort of an issue. However, you need to understand here, if you really want to come out of this battlefield जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर let go करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. So let go of the things that are of least priority to you. Delegate. Could be some new beginnings around the edge waiting for you here when you're stepping into a peaceful mode of yourself, and your mind is, but right now what is happening here, it shows that in October, in the beginning, your mind is working constantly. It's basically a phase of abundance for you, positivity, opportunity, love, and it's a peaceful time that you're stepping into. So, as I said, could be some new beginnings for you, but because your mind is working constantly, it will become difficult for you to focus. So, universe is telling you to let go of the things that are right now bothering you and focus on the direction where the abundance is coming in your way. There is a female around you, could be your partner or someone who is very supportive in terms of everything you do, be helping you sail through this and reach the place where you're supposed to be. Also, it indicates some sort of a traveling for you to gain your sanity and peace back in life. As I mentioned about the new beginnings here, it's going to look harder in the beginning right now for you, but if you take care of your emotions, your senses, you control everything you do, or double check in terms of your words, your actions, and work on this path with sincerity and dedication. ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ये आपके लिए अबंडेंस की गेट खोलने के लिए आई है, और एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये ऑफर जो है वो किसी फीमेल के थ्रू आए आपके पास, कोई ऐसी लेडी जो थोड़ी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, अब लोगों के बारे में कम सोचती है, और बट वो अब नंबर्स और एनालिटिकल अप्रोच उनकी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऐसे किसी इंसान के थ्रू आपको ये ऑफर आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है दैट यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ to imbibe this energy of being logical, practical when it comes to the opportunity or the new beginning which is right there in front of you. It's about expansion, traveling, some important decision making which would happen in this month for sure. ऐसा भी हो सकता है कि किसी आउटकम का जो आप वेट कर रहे हैं वो आउटकम आपको डिलीवर होगा इस महीने। कुछ डिस्कशंस जो पेंडिंग है वो डिस्कशंस होंगे, गाइडिंग एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एंड यू आर सर्टेनली गोइंग टू स्टेप इनटू एक्सपेंशन। मतलब आप अकेले नहीं वेट कर रहे हैं उस एक्सपेंशन का, उस डिसीजन का। आपकी गाइडिंग एंजल्स, आपकी स्पिरिट्स जो भी आपको सपोर्ट करती हैं वो सब वेट कर रही हैं। ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके आसपास अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। आप में से कई लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपके फिनेंशियल अबंडेंस की बात है यहाँ पर। मेक एन एफर्ट विद योर हेड एंड हार्ट टू बी वेलकमिंग टुवर्ड्स दिस एनर्जी। आपको एनर्जी इंटैक्ट रखनी है अपनी। वर्क हार्ड एंड फोकस ऑन योर क्राफ्ट। Could be also for some of you, it's an indication that it's better to do something productive rather than thinking about what's with you, what's not, your expectations, etc. Rest is looking wonderful for you. Number 5, birth number 5 and Mulang 5. So for Mulang 6, as in birth number 6, let's see what October 2025 holds in. So universe ने October 2025 के लिए
मूलांक 6 को, बर्थ नंबर 6 को 3 मैसेजेस दिए हैं। पहला मैसेज इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नंबर 6 जिनका भी बर्थ नंबर है, मूलांक है, वो डिसीजन मेकिंग में होंगे। लाइक देयर विल बी 2 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ देम, जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है, ये ऑप्शन लेना है या वो ऑप्शन लेना है। हो सकता है कि ये किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में हो, कोई 2 ऑफर्स हो, कोई 2 फील्ड्स हो, या एग्जिस्टिंग जॉब के अलावा उनके पास कोई और ऑफर आया हो। सो बेसिकली ऑल इन ऑल इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग where they look confused. However, somewhere यूनिवर्स ने ये भी एनर्जी दिखाई है कि आप जिन भी 2 रास्तों में कंफ्यूज है ना, किस रास्ते को लेना है, दोनों ही रास्ते इक्वली कैलिबर वाले हैं, इक्वली आपके लिए अबंडेंस लेकर आएंगे। या बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने एम पर, अपने गोल पर तो पहुंचोगे। लाइक वट एवर डेस्टिनेशन यू वॉन्ट टू रीच ओवर हियर, यू विल रीच इट। इट डजंट रियली मैटर विच ऑप्शन यू choose or which way you go. At the same time, बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है that you know there is something happened which is pushing them to take this sort of a decision. So कहीं ना कहीं वो एक inner sadness है, like कुछ reality check, information, news ऐसी मिली है उनको जो वो मे बी expect नहीं कर रहे थे, but वो news और information उनके सामने आई है, तो now they have to take this decision जहाँ पर इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल उनको फील हो रहा है। बट एंड ऑफ द डे क्योंकि डिसीजन लेना है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, सो जस्ट मेडिटेट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। यूनिवर्स को आप अपनी सोल्यूशन जो भी है वो दिखाने के लिए बोलिए। आप यूनिवर्स को फ्रंट सीट दीजिए और खुद बैक सीट लीजिए यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल यूनिवर्स आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि इमोशनली अनस्टेबल हैं, सो यू हैव टू लुक एट लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ आई है वो आपकी ग्रोथ के लिए ही आई है, उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड मूव ऑन टू योर गोल। इमोशनली थोड़ा अपने आप को संभालिए, मेडिटेट कीजिए, एंड एंड ऑफ द डे आप जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो यूनिवर्स के थ्रू आप कीजिए और आप लॉजिकल एस्पेक्ट के थ्रू ही चलिए। दूसरा, देयर इज सर्टेनली समथिंग अमेजिंग कमिंग इन फॉर यू, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए, विच इज कंप्लीट ब्रेक थ्रू, कुछ फिनेंशियल ब्रेक थ्रू। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो दैट इज सर्टेनली गोइंग टू हैपन इन अक्टूबर 2025। मॉनेटरी गेन्स है एंड अमेजिंग ब्रेक थ्रू इज सर्टेनली वेटिंग फॉर यू। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ एन ऑफर, आप इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो आपकी पक्का दिख रही है एनर्जी बेसिस पे, या कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या कोई एक ऐसी चीज़ जिसका आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो आपके फिनेंशियल अबंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक थ्रू आपके सामने आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिसीजन मेकिंग में क्योंकि आप अपना ब्रेन यूज़ करेंगे, तो हो सकता है अक्टूबर में इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करेंगे, अंदर ही अंदर सोचेंगे चीज़ों को। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, लाइक फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट। नाउ यहाँ पर ना 2 सिचुएशंस है। पहला, क्योंकि आपने अपना ब्रेन इतना यूज़ कर लिया है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ exhausting yourself. Secondly, कहीं ना कहीं you know the solution to whatever problem is there. It's just that there is a fear of change somewhere. आपके सामने keys तो हैं, you know the solution, but you're not able to take that decision. Somewhere your heart knows the solution to whatever problem you're facing in this month. And it also somewhere indicates that, you know, somewhere around you there is a woman who is spiritually strong, and she can certainly help you here in taking this decision, or maybe sorting out the facts that you're confused about. So as I said, there is a strong lady around you. अगर आप खुद spiritual हैं, strong हैं, अपने आप को fierce मानते हैं, तो आपको आपकी एनर्जी इंडिकेट कर रहा है यूनिवर्स कहीं ना कहीं, नहीं तो एक ऐसी फीमेल एनर्जी आपके आसपास जो स्ट्रॉन्ग है, फियर्स है, स्पिरिचुअल है, एंड एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप उनके पास, और आप जनरली भी गाइडेंस के लिए उनके पास जाते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार जब हम ऐसी चीज़ों में फंसे होते हैं और आपकी गाइडिंग एंजल्स, आपकी
सपोर्टिंग स्पिरिट्स जो आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, वो इन सोर्सेज के थ्रू आपको सपोर्ट करती हैं. सो यू सर्टनली गो ahead and explore and have a conversation with someone like her. She'll certainly help you out to sort out things in your life. So for Mulang 7, as in जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7th है, 16th है या फिर 25th है, उनके लिए अक्टूबर 2025, you know what sort of energies are coming in for you and what is the energy that universe is showing your way. So basically यहाँ पर 3 बहुत important messages हैं आपके लिए. सबसे पहला मैसेज है you know, इफ़ यू हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो अक्टूबर इज़ द मंथ फॉर यू टू गेट द आउटकम इन फ्रंट ऑफ यू. तो यहाँ पर यूनिवर्स क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हार्ड वर्क करना था आपके एंड से आप वो ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में किसी रिलेशनशिप के थ्रू हो. कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक सर्टेन वे में कि आपको आउटकम ये ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तो आपके लिए यूनिवर्स ने सेम एनर्जी दिखाई है. It shows you some sort of a new beginning, also at the same time harmony, balance coming in back into your life. So just look forward to it. It also somewhere indicates कि जो struggle का time है ना, it's kind of getting over for you. So it's time for you to celebrate. Number 2 message, आप लोगों में से कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ना पास्ट कुछ समय आप लोगों का काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा हो इन टर्म्स ऑफ मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई हैं, लॉजिकली चीज़ें आपके सामने हुई, बट यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स बिकॉज आप थोड़ा इमोशनली आप चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. एट द सेम टाइम ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि कई बार रिपीटेटिव एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होने से हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं. हम सोचते हैं कि नाउ इट्स द एंड, लाइक यू नो आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट फर्दर इन माई लाइफ. आप लोगों में से कई लोगों के अंदर ना ये एक टायरिंग वाली फीलिंग आ गई है दैट यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप एंड डूइंग समथिंग, थोड़ा डिमोटिवेटेड हैं. सो अक्टूबर इज द मंथ वेयर इट्स काइंड ऑफ शोइंग यू नंबर 10. नंबर 10 मीन्स कि आप जिस भी फेस में हैं, स्ट्रगल के फेस में हैं, परेशान हैं या कुछ रिपीटेटिव एक्सपीरियंसेस आपके हो चुके हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेस. ये साइकिल जो है ना ये कंप्लीट होने वाली है और एक न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये अश्योर भी कर रहा है दैट यू आर नेवर अलोन. इवन इन सच एक्सपीरियंसेस, गुड टाइम्स तो अपनी जगह है, इवन इन सच एक्सपीरियंसेस यू आर नेवर अलोन. आपकी गाइडिंग एंजल्स, सपोर्टिंग स्पिरिट्स, सब कोई आपके साथ हैं, आपका हाथ पकड़ के चला रही हैं आपको. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन टू फाइट इन लाइफ. जस्ट गेट अप, look in front, see the sun rising for you, the sun of success is coming in for you. कोई new opportunity हो सकती है, कोई hope हो सकती है, but it is all coming together for you. So this is number 2 message for Mulang 7. Number 3 message is majorly about couples भी हो सकता है या कुछ इस तरीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर किसी के साथ है ऑफिस में कि आप साथ मिलकर काम करते हैं लाइक ऑफ ऑपोजिट जेंडर, तो थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्टेड या स्टक फील हो सकता है. लाइक पर्सनल रिलेशनशिप्स की मैं अगर बात करूँ तो दिस कार्ड इज ऑल अबाउट फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, फीलिंग कि मेरी ग्रोथ स्टैग्नेंट है इस रिलेशनशिप में, लाइक मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ और कुछ सीख नहीं पा रही हूँ. कहीं ना कहीं आप बंधे हुए तो हैं, आपको आप निकलना भी चाहते हैं बट कहीं ना कहीं आप बंधे भी हुए हैं. तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग इन लाइफ. एट द सेम टाइम ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, ये हमको एंड ऑफ द डे एक न्यू होप की तरफ, एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ, एक न्यू एक्सपीरियंस की तरफ लेकर जाते हैं. तो यू ऑलवेज नीड टू टेक दीज एक्सपीरियंसेस इन दैट मैनर. प्रोफेशनली ऑल्सो हो सकता है कि आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो इंटेंशनली आपके लिए चीज़ें क्रिएट करे आपको परेशान करने के लिए, या आपसे उनका ना कोई मोटिव है दैट दे वांट टू अचीव, लाइक दे गेट दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेजर यू नो बाय हर्टिंग यू. इस तरीके का कोई इंसान दिख रहा है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, अपना अपनी चीज़ों को ऊपर रखना एंड ऑलवेज इंश्योरिंग कि चीज़ें उनके इशारों पर चले. इस तरीके का कोई इंसान आपके आसपास है, अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो
आई मीन इन अक्टूबर 2025 उनकी एनर्जी थोड़ी प्रिविलेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर, प्रोमिनेंट है एनर्जी. And this sort of an energy is going to trouble you, but end of the day it's just a phase, it's just a cycle that I'm talking about. You always need to ensure कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, अपने कैलिबर के बारे में सोचो, अपने माइलस्टोन्स के बारे में सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो जो आपकी लाइफ में हुई हैं. हैव द ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ एंड योर लाइफ, and everything is gonna sort out for you eventually. So number 7, that is how your October 2025 month looks like. But end of the day, it's ending with number 6. So it's on a higher note. 6 represents Venus. It represents luxury. It represents hope, positivity, love, opportunity. तो इस तरीके की energy towards the end of it भी आते हुए शुरू हो जाएगी आपके लिए. So yeah, all the best for you. So let's see for Moolank 8, what is the message that universe is trying to communicate over here? As in birth number 8, so people who are born on 8th, 17th and 26th of any month, ये उनके लिए है मैसेज. अक्टूबर 2025 यूनिवर्स ने मुझे 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए दिखाए हैं. पहला तो है अबाउट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मीनिंग गेटिंग गुड luck, getting ample amount of luck. It's a beautiful energy coming in for you, meaning कि आपके फेवर में आपके guiding angels, आपके supporting spirits, आपके ancestors, everyone is around you. They're giving blessings to you. That October 2025 month is gonna get you abundance in your life. It is all about new beginning, assurance of your guiding angel, your Ishtadev, your spirits कि वो सब आपके साथ हैं. आप जो भी decision making करेंगे वो सब आपके फेवर में होगा. I mean, in life, of course, you have your own fears, you have your own worries. तो वो सारे fears और worries तो हैं, but कहीं ना कहीं ये भी indicate करता है कि आपकी life के experiences में you're just moving on brilliantly. आप trust के साथ, faith के साथ, surrendering के साथ, you're going to move on beautifully, Moolank 8, in the month of October. Secondly, some sort of an amazing bunch of energy coming in for you in terms of an opportunity. कोई एक divine intervention होने वाला है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको या तो कोई नया ऑफर मिलेगा या पर्सनल लाइफ में अगर बोलूँ तो किसी इंसान का अराइवल है, कोई प्रपोजल है, कुछ सॉर्ट ऑफ एक ऐसी एनर्जी आती दिख रही है दैट इज गोइंग टू एड ऑन हैप्पीनेस इन योर लाइफ. तो प्रोफेशनली ये प्रमोशन भी हो सकता है, अबंडेंस भी हो सकता है इन एनी फॉर्म, जो भी आप वेट कर रहे हैं. अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या ऑल ऑफ अ सडन आपके आसपास कोई एकदम से आएगा आपको एंजेलिक पर्सनालिटी जो आपको कोई गुड न्यूज़ देगी, ऑफर देगी, और ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेस, ब्यूटीफुल सा मंथ लग रहा है आपके लिए, मूलांक 8. लास्टली इट्स अबाउट द हर्मिट. तो जब भी हर्मिट की एनर्जी आती है ना, ऐसा लगता है कि आप कई बार अपनी हेल्थ को ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो. तो आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज नहीं करना है. डू नॉट रीड टू मच इन बिटवीन द लाइन्स. And at the same time, it's about number 9. Number 9 tells you about the energy and the aura. तो head and heart का alignment is very important for you. अगर आप सोचते हैं कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मन से आप दुखी हैं, किसी चीज़ को आपने पकड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा इम्पैक्ट होता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमारी एनर्जी यूनिवर्स से कम्युनिकेट करती है और अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटकम आता है. इफ़ वी कीप ऑन इफ विल नॉट keep a check on our energy, then of course the outcome that you're expecting will not be happening to you. So oozing out positive energy is gonna attract positive outcomes. That is how it is. Simple. So आपको अपने हेड और अपने हार्ट को अलाइन करना है, रेस्ट लेना है, पॉज लेना है, लाइफ इंजॉय करनी है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, मेडिटेशन करना है, हो सके तो वेकेशन भी ले सकते हैं अगर काफ़ी टाइम से कुछ टायरिंग हो गया है आपके लिए. तो हो सकता है आप लोगों में से कई लोग वेकेशन का भी प्लान करें, विच इज़ ग्रेट. आई थिंक यू शुड डू इट बिकॉज यू डिजर्व दैट सॉर्ट ऑफ अ मेंटल पीस एंड ब्रेक इन योर लाइफ. So for Moolank 9, as in the birth number 9, what is October 2025 holding on for you? Meaning, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 9th,
18th या 27th ऑफ एनी मंथ है, उनके लिए अक्टूबर 2025 में यूनिवर्स ने मुझे 4 इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं, नॉट जस्ट 3। तो पहला मैसेज जो है वो इट्स अबाउट जस्टिस, मतलब किसी तरीके का फैसला होने वाला है, कोई आउटकम आने वाला है आपके सामने, और वो आउटकम छोटा मोटा आउटकम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर कार्मिक लेसन्स। तो जो भी सिचुएशंस में आप हैं, अगर कोई डिस्कशन पेंडिंग है या लीगल बैटल्स चल रही हैं, तो उसका आउटकम आपकी लाइफ में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, शायद फर्स्ट वीक भी हो सकता है या टुवर्ड्स द मिडिल भी हो सकता है, बट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 1st to 10th के बीच में आपके लिए वो आउटकम डिलीवर होगा ही होगा, और वो आपके फेवर में होगा इन द लॉन्गर रन। मतलब आपको उस आउटकम को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल अबाउट लाइफ लर्निंग, कार्मिक लेसन्स जो आपने पिछले कुछ टाइम से फेस किया है, राइट? एंड इट्स ऑल अबाउट bringing harmony, and it's number 11. So number 11 always represents angels and guiding spirits, right? So meaning कि ये लेसन आपके लिए लाइफ में फॉर ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए आपकी लाइफ में सिचुएशंस हुई, बट एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू एंड वेरी सून नाइसली फॉर यू, बिकॉज you are towards the end of it. Secondly, as soon as this particular justice will be delivered, this result will be delivered, you will be busy managing things, like anything, like multitasking होगा, management of things होगा। ये भी हो सकता है कि उस आउटकम के आते ही आपके सामने 3-4 अपॉर्चुनिटीज हों जिसे आपको मैनेज करना हो, या यू आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स थिंकिंग कि इन चारों अपॉर्चुनिटीज को मैं कैसे मैनेज करूं, या उस तरीके की एनर्जी दिख रही है ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस जहां पर आपके सामने 3-4 अपॉर्चुनिटीज हैं, यू आर जस्ट थिंकिंग कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर हो सकती है टू मूव फॉरवर्ड, बट ओवरऑल इट्स अबाउट फिनेंशियल अबंडेंस। तो ये भी हो सकता है कि आपके सामने एकदम से रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे और 3-4 चीजें आपके सामने आएंगी, वेर इन यू विल थिंक कि ओ आई मीन आई हैव बीन जस्ट वेटिंग फॉर something like this to happen, and this has just happened beautifully in front of me. Message number 2, आपके लिए इट्स काइंड ऑफ अ बैटल फील्ड जहाँ पर you're already done, playing your role, you're done fighting, you're done with all the conflicts, मतलब it's representing the struggle and the painful time, so it's all coming to an end, मतलब एक साइलेंट जोन में आप आ गए हैं, ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पर you're towards accepting it. So as I said, there is some sort of a new beginning after the outcome, right? So the sun is rising for you. You look at the brighter aspect of it, and there is a new beginning for sure, which is certainly going to add a lot of strength in your life, and it is going to bring a lot of stability in the coming time. So you just focus on that and move on to that particular, side. At the same time, for some of you, it's a traveling time. It's gaining balance and synchronicity back into your life. Traveling भी हो सकता है, movement की planning भी हो सकती है. A lot of things can happen in this month, which is altogether, bringing a lot of abundance, peace, sanity, calmness back into your life. बहुत लोगों की आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन भी हो सकता है, दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन एट होम और मे बी आउटसाइड द होम। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने ये भी दिखाया है दैट देयर इज सर्टन थिंग, देयर इज समथिंग, मे बी कुछ एक पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है, प्रोफेशनली, पर्सनली, आप उसने उसको ना जकड़ के रखा है, लाइक यू जस्ट होल्डिंग ऑन टू इट वेरी टाइटली एंड यू आर वरीड। Don't be, because end of the day it's all life, right? It's all part of your life cycle. So जो भी चीज आपने पकड़ के रखी है, चाहे वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हों, चाहे वो आपकी लाइफ में करंटली देयर इज समथिंग दैट यू आर वरीड अबाउट, जस्ट लेट गो ऑफ इट, बिकॉज जितना आप उसके बारे में सोच के वरीड होंगे ना, उतनी एनर्जी एड ऑन होती जाएगी, एंड इट इज not going to help you grow anywhere in your life or reach anywhere in your life. So it's important for you to let go of the same sort of an energy. At the same time, it also indicates somewhere that it is very important for you to work hard in the month of October. Just improve your craft, be focused, because इस तरीके की worry वाली energy या being in the silent zone and just analyzing things is gonna hamper your work
don't be in that zone at all. Just keep on focusing on your work, keep on doing your hard work no matter what, because that's what is gonna give you the outcome end of the day. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कितना भी आपका स्ट्रॉन्ग लक हो, अगर आप अपना काम पैशनेटली, सिंसियरली, परसिस्टेंस के साथ कर रहे हैं, then of course it is gonna get you a lot of balance, a lot of caliber is gonna be added. Somewhere you will have that sort of a confidence that I can do it, I can certainly get it done for myself. And end of the day, it's a beautiful, beautiful energy of some sort of a judgment, some sort of a result coming in front of you. मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं, आपके गाइडिंग एंजल्स, आपकी सपोर्टिंग स्पिरिट्स, जिनको भी आप मानते हैं, वो सब आपके लिए प्रे कर रहे थे, और अब टाइम आ गया है उस आउटकम के डिलीवर होने का. It is going to get you harmony, financial abundance, like anything. So end of the day, October month for Moolank 9, it's going to be beautiful, mixed of experiences, but of course the major energy that I can see for you is some sort of a result, outcome, karmic lessons getting closed, and at the same time reaching the end of a difficult phase that you're part of. Continue to improve your craft, and end of the day, some sort of an amazing energy of outcome coming into your life, which is certainly going to add harmony, balance, synchronicity, and end of the day, financial abundance for you. Thank you so much, everyone, for watching the October 2025 guidance sent by Universe. This is your Moolang, this is your birth number. I hope you were able to connect with all the messages. Do let me know in the comment section, comment box, कि आप इन messages से relate कर पाए हैं, नहीं relate कर पाए हैं. Whatsoever, happy to receive your feedback. At the same time, टैरो सेशन, आकाशिक रीडिंग सेशन या ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर. मेरे सोशल मीडिया पेजेस के जो हैंडल्स हैं, आई हैव अपडेटेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. एट द सेम टाइम, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली से शेयर कीजिए, बिकॉज दीज आर द मैसेजेस दैट यूनिवर्स हैज सेंट, एंड आई रियली वांट each and every one receive this guidance, because you never know, right, कि किस मैसेज की ज़रूरत किसको है, right? क्या सुनने की ज़रूरत किसको है, and how can, in case if anyone gets help from this, and more than happy to play a little part in this beautiful journey together that we've been part of. So thank you so much once again, everyone, and I really hope the month of October brings in harmony, success, prosperity for you, and it's the occasion of Diwali. So a very happy Diwali to all my viewers in advance, and I hope this Diwali brings in happiness, success, wealth, prosperity, and a very good health also, which is the most important thing in our lives.